चलो अच्छी बात है, शांति रहनी चाहिए. Anyhow, so here about UPSC. That's today we are aiming to discuss the class about the course. So trust me, it's going to be a beautiful thing. We have designed it with all kind of experiments and experiences we've had. And as you know कि भाई हमारा स्टाइल ये रहता है कि खुद से क्लियर करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको पढ़ाया उसको पढ़ाया नहीं, है ना. सो अबाउट दैट we'll have a session on the introduction of Vijay course. Excuse me. Excuse me for that. We'll introduce the course where we'll go for 3 revisions. We'll manage self study. We'll have a crash course. We'll have a test series. We'll learn how to hack questions in UPSC. And we'll also learn how to attempt your paper. भाई हर किसी ने कैसे attempt करना है पेपर, कितने सवाल करने चाहिए, राइट. हर किसी को अलग अलग इंडिविजुअल के स्टार्ट्स एंड बेसिस एंड टेबल्स बना के दैट वील डू, totally personalized and again limited seats. So I'll share my screen and discuss about the details of the course now. Just a second. So before anything here, before looking at the perspectives, we should understand UPSC. UPSC की demand is entirely different from PPSC or HCS or HAS, any kind of state exam. They demand many other things. They will not give you standard questions. For example, NCRTs are not material for them, it is reference material for them. They will never ask you, for instance, an example, NCRT environment chapters behind the bio 12th class book. PPSC asked you a direct question on catalytic converter. Very simple, easily answerable from NCRT itself. Yes, UPSC did ask that question, but how did they ask it? There's a example of a cattle egret. कैटल एग्रेट एक हुंदी है जी, वो पीछे अपने गाय के पीछे पीछे मज के पीछे पीछे चलती रहती है एंड फील्ड से अगर जगह बनती रहती है उसके चलने से, गाय के चलने से, तो जो कीड़े निकलते हैं वो खाती रहती है. सो बट दे गेव यू दिस एग्जांपल फ्रॉम द एनसीईआरटी कि कौन सा वो जानवर है, कौन सी वो स्पीशीज है जो कैटल के पीछे चलती है. सो वी वर श्योर कि कैटल एग्रेट होगा, बट चारों के चारों ऑप्शंस में कैटल एग्रेट था ही नहीं. So they in the options they gave something else which was not mentioned in NCERT, the common name. So similar happens with UPSC sir. Nature समझने वाली बात है कि बाकी सारे एग्जाम्स फैक्ट्स पूछते हैं और डायरेक्ट फैक्ट्स पूछते हैं, चाहे जितना मर्जी स्टैंडर्ड बढ़ा ले वो यहीं पे रहते हैं. UPSC actually gives you applications and concepts. So over here एडवांटेज ये है कि भाई स्टेट वाले एग्जाम को प्रिपेयर करना रट्टेबाजों के लिए आसान है. देन सिंस 2020 रट्टेबाजों के लिए प्रीलिम पास करना भी पॉसिबल नहीं है अब यूपीएससी का. मेरे को खुद से ऐसे लोग जानते हैं जो 2020 से पहले 5 में से 5 करके बैठे थे प्रीलिम्स, छठा आया 2020 के बाद वाले प्रीलिम्स, 19-20 के बाद वाले प्रीलिम नहीं पास हुए सर, जो 100% ट्रैक रिकॉर्ड था, राइट. सो व्हाई? बिकॉज नाउ इट इज कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन बेस्ड. बट व्हाट इज द एडवांटेज ओवर देयर सर? These hacks and attempts come in very, very, very handy. Trust me, if you understand this very well, तो किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन से आंसर समझ आ जाता है भी ये किस टाइप का क्वेश्चन है और इसमें किस टाइप का आंसर होगा, राइट. आई डोंट नीड टू गिव एनी प्रूफ्स राइट नाउ, वो हैक्स कॉर्नर में जाके प्लेलिस्ट में देख लेना. So now coming to the course sir, with this understanding that we need something other than state PCS for UPSC, right? Because that's the elephant's feet. So अबाउट दिस कोर्स सर, विजय कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा बेसिक आइडिया है 3 रिविजन्स कराना. सेल्फ स्टडी आपके साथ, आपको शेड्यूल्ड सेल्फ स्टडी कराना सबसे पहले और उसमें टेस्ट प्रोवाइड करना. फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट से स्टार्ट होगा, आपको 3 से 4 दिन जितने पॉसिबल हैं दिए जाएंगे, उसके बाद एनवायरनमेंट का टेस्ट होगा जी. सो यू विल हैव अ शेड्यूल. ये प्रॉब्लम आती है कि सर पढ़ा नहीं जा रहा, पढ़ता तो हूँ बट शेड्यूल नहीं बन रहा. So you will have a schedule made by us. First we'll start over here. सारे components को ऐसे टेस्ट करते जाएंगे. First revision will happen with this self scheduling and self study scheduling and testing. Then as you have the detailed prospectus, नहीं है तो मंगा लेना मेरे से. Then we'll start with, in January we'll start with a crash course
where content would be delivered. What will be the format over there? Sir, we'll have content which will divide. We'll do that actually कि भाई सपोज पोल्यूशन टॉपिक कर रहे हैं एनवायरनमेंट का, पोल्यूशन टॉपिक उठाया, सो स्टैंडर्ड बुक शंकर आईएएस वाली, वो सेंटर में उसके नोट्स, साइड में एनसीईआरटी वाले और इस साइड में करंट अफेयर्स उसके. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि एक एक टॉपिक को उठा के we'll have those notes as well. And with this, the first revision is self-scheduling, the second revision is crash course, the third revision is test series, and the fourth revision is your own oral testing after all this. And trust me, आपको पेपर वाले दिन तक, यहाँ ऐसे नहीं होता कोर्स मुक गया तो बात खत्म हुई. पेपर वाले दिन तक क्या, जीएस और सीसैट के बीच वाले ब्रेक में भी मेरी तरफ से कोई ना कोई मैसेज जरूर आएगा सर, what to do and what not to do. So this is with this we talk about the contents of the course. So prelim plus mains combo क्यों बोला जा रहा है इसे सर? Because every Sunday we'll have answer writing sessions. That too is planned in such a way कि इसका prelim certain है तो बिल्कुल prelim के पास जा करके हम आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, बट कुछ हफ्तों तक, कुछ महीने तक हम आंसर राइटिंग करते जाएंगे कि ये तैयारी भी साथ में होती जाए. Personal training means everybody would have a personalized stat and would know in the month of May when the prelims is appearing कि मैंने जाके कितने सवाल करने हैं और कैसे अटेम्प्ट करना है, मेरी कमियां और मेरी पावर क्या है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, right? Crash course, as I said, I'll be dealing with in detail. Test series, obviously answer writing every Sunday. And one more thing is over here, every Saturday we'll have this Uttiran. What does this mean? Another game of UPSC sir. करंट अफेयर स्टैंडर्ड बुक से नहीं आते, स्टैंडर्ड बुकलेट से बहुत कम आते हैं. अगर 20 सवाल हैं तो 2 ही वो कोई पीटी या एमटी या आरटी जिससे भी सॉल्व होते हैं, 20 में से 2. सो बाकी कहाँ से आ रहे हैं? फॉर दो सोर्सेज अ स्टूडेंट कैन बेस्ट डू दिस कि यार मैंने पीटी भी पढ़ ली और सीटी भी पढ़ ली और 1 महीने वाली मैगजीन भी पढ़ रहा था मैं, बट सवाल फिर भी नहीं आए. ये 2016-17 के बाद से बंद हो चुके हैं इनमें से सारे सवाल आना. So what to do? The extra sources which a student cannot cover. Extra sources like, as I said again and again, Science Daily. Science Daily हो गया, Research Gate हो गया, or probably Collins का environment हो गया. All those things would be covered on Saturdays. And the discussion would be based upon, we'll try to do it in such a way that एक टॉपिक उठाया, उसमें से कवर किया पहले कंटेंट सैटरडे को, देन वहीं पे ही उसके प्रीलिम बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेके आ सकते हैं और मेंस बेस्ड क्वेश्चन भी उसका बना लिए कि दैट वी कैन डील विद इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली. एंड ऑल्सो सर्टन टॉपिक्स हैव इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल, तो वील बी रेफरिंग टू देम एज वेल. सो काफी होलसम से डिस्कशन, बट सोर्सेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल रहने वाली बात है जी यहाँ पे. राइट, सो फॉर द फर्स्ट शेड्यूल, डिटेल शेड्यूल, एक एक दिन आपका प्लान है सर, कहाँ से कैसे शुरू होगा. सी ओवर हेयर 18 नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू विल बी गिवन अबाउट 3 days टू कवर दीज, एंड देन मंडे यू विल हैव अ टेस्ट, इन्वायरमेंट का टेस्ट. अब इसमें क्या एडवांटेज है सर? आपने किसी भी कोचिंग से पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, कोई भी मटेरियल पढ़ा है, जब आप इसे रिवाइज करके टेस्ट दोगे तो क्लास में लाइव टेस्ट करने की कोशिश होएगी हर बार. जो नहीं आ पाता कोई बात नहीं, पीडीएफ मिल जाएगा. कभी ऐसा भी होता है कि मैं ही ना आ पाऊँ तो पीडीएफ जरूर मिल जाएगा. सो अगर आपके टेस्ट में रैंक आ रहे हैं, अगर रैंक आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, पता लग जाएगा आपका स्टडी मटेरियल कितने पानी में है. सो जो भी है उसको इम्प्रूव अपॉन करने के लिए, ऑल्दो आई विल ऑल्सो रिकमेंड सर्टन थिंग्स विच आर बेस्ट इन द कंट्री, कि इन्वायरमेंट के लिए क्या बेस्ट है, पॉलिटी के लिए क्या बेस्ट है. अगर आपने कुछ और करा है तो वो भी टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट में पता चल जाएगा कितने नंबर आ रहे हैं. राइट, सो यू विल हैव दिस शेड्यूल फॉर सेल्फ स्टडी, एंड सैटरडे एंड संडे ऑब्वियसली अभी मेन आंसर राइटिंग एंड Uttiran on Saturday, that is current affairs discussion, and Sunday would be the main answer writing session. Right, that's the idea. Then we'll move on to history and test that, etc., etc. All the components would be tested with everything planned कि आपको कुछ नहीं करना, जस्ट उठ के ये चीजें रिवाइज करनी और इनका टेस्ट देना है. सेल्फ शेड्यूलिंग में मतलब ये है कि जो आपने करा हुआ है वो ठीक है कि नहीं है, और उसमें शेड्यूल कैसे बनाना है, डंडा कैसे रखना है. एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद के पेपरों की ये प्रॉब्लम है. अब हम हो चुके हैं एडल्ट, स्कूल वाला डिसिप्लिन है नहीं, टीचर से हम डरते नहीं. सो नाउ द थिंग इज
that somebody is required to make you work. और वो जैसे पेरेंट्स बोलते थे ना, हमारे ज़माने में तो लाइट भी नहीं होती थी, हमारे ज़माने में तो हम मगरमच्छ के मुँह में बैठ के पढ़ते थे, पानी में तैर के जाना पड़ता था। सो नाउ द यंग लैड रिप्लाइज़ कि सर पापा आपके ज़माने में जितनी कम डिस्ट्रैक्शन थी, हमारे ज़माने में इतनी डिस्ट्रैक्शन है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और इवन देयर आर अदर थिंग्स which dating websites, etc., etc. So much distraction, sir, and still we have to study. So to avoid those distractions and to make you work, sir, that is why each and every day till the May day, इस बारी तो सच्ची में May में है prelims. So May day is planned and very very comprehensively made. Right, so everything would be tested and your approaches would be put to the core test. सो ये सब कुछ हो रहा है सर। इसके बाद फिर जब मॉक टेस्ट इधर भी हैं, माइंड यू, सारे टेस्ट हो जाएंगे कि हमें समझ आ जाएगा कि कितनी जरूरत है टिल 6th of January. Then we are beginning with the crash course where again we'll be covering each and every component, sir. सारे components कवर होंगे और साथ में कुछ दिनों तक उत्तीर्ण और मेंस आंसर राइटिंग चलेगा। देन उसके साथ हम लोग ये स्पेशल एड-ऑन्स एंड hacks we would be learning two ways. One, with every test we'll not be discussing only the content की आंसर की क्या है, वो तो पीडीएफ मिल जाएगी डिटेल्ड, बट विद एवरी टेस्ट वील बी टेस्टिंग कि इसको अटेम्प्ट कैसे किया जा सकता था, कि कौन सा सवाल क्या क्या इसमें, इफ यू डू नॉट नो द आंसर फ्रॉम कंटेंट, सी देयर आर थिंग्स लाइक कंटेंट, ये सारे लोग कवर करते हैं यार, ये तो एवरी कोचिंग, एवरी बुक, गूगल इज द बेस्ट सोर्स, राइट। सो कंटेंट के बाद अटेम्प्ट की बारी आती है। स्टेट एग्जाम्स में शायद यहाँ तक भी चल जाता हो, बट यूपीएससी में अटेम्प्ट एंड हैक्स के बिना नहीं चल सकता, सिंपल एज दैट, ट्राइड टेस्टेड प्रूव्ड। So we need these things and we will be discussing these things with each and every test in the discussion of the test, and we'll have special sessions on them as well. Again, with every component there would be a test like science test after science, culture test, etc., etc., etc. Then we'll have mock tests as well. We'll have a CSAT test as well, and 12 mock tests from other sources. What does that mean? कि we do not believe कि हमारा ही दिमाग शहंशाह का दिमाग है. We'll be referring to at least 10-12 test series, and the best among them will be providing you 12 tests among from them with their watermark itself. कोई चोरी नहीं है, कोई झूठ नहीं है, विजन द टेस्ट चक के कॉपी पेस्ट करके अपना नहीं करना. We'll be providing them with watermark itself, right? So don't worry about that. So this is the basic idea, sir. With that you can also ask for the prospectus and the every fee structure, etc., etc. अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है. So again coming back to this, sir, 18 नवंबर से हम लोग बिगिन कर रहे हैं. आज जस्ट इंट्रोडक्टरी आइडिया था. आप इन्वायरमेंट पढ़ना शुरू कर सकते हैं अगर आप एनरोल्ड हैं, सर. यू नो व्हाट व्हेन द टेस्ट इज हैपनिंग. यू माइट हैव ऑलरेडी रेड इट, तो रिवाइज कर सकते हैं. एंड वील बी प्रोवाइडिंग यू द टेस्ट एज पर द शेड्यूल. एंड रजिस्टर तो ऑब्वियसली करना ही है आपको, नहीं करा है तो बता देना मुझे. एंड जो गुरुकुल वाले स्टूडेंट्स थे उनको सबको ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है, साथ में ऑब्वियसली सब कुछ इसका टोटली फ्री है, right? Everything would last till the last day where the prelims is happening. So don't worry at all. 100% support about the content attempt and hacks would be provided. And anything among these, मैं जी कंटेंट कल्ला लेना चाहना ले लो, मैं हैक्स कल्ला लेना चाहता हूँ ले लो, मैं प्रीलिम टेस्ट सीरीज कल्ली लेना चाहता हूँ ले लो, सब कुछ आपके साथ प्रोस्पेक्टस में शेयर. Good evening, sir. I'm That's sorry I came a little late. That's the idea over here. नवजोत जी आके मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में. So that's the idea over here. You can buy anything which you want separately. You can use anything that you want separately. But एक बात पक्की है सर, थोड़े से दिन रह गए हैं, अब टाइम नहीं है. कोई ये सोच के बैठा है कि अभी तो बहुत देर बाद है प्रीलिम्स, सर ये समझ लो कि अब मेहनत की घड़ी आ गई है. एक चीज अनकम्प्रोमाइजेबल है, मेहनत. ऐसा कोई जो भी गुड इवनिंग सर ही बोल रहे थे, वही उन्होंने क्या करा, पिछला अटेम्प्ट खुद से खराब कर दिया कि कोई बीमार है, कोई गिर गया, मेरे दांत टूट गए. सो व्हाट हैपेंस देन, जब क्लास का फ्लो टूट जाएगा, रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी का फ्लो टूट जाएगा, हॉर्सेस माउथ से सुन लेना क्या होगा.
बिकॉज दिस इज अ गेम कि वो हैं पूरे 1000 और हम है कल्ले 1000 क्या है पेजेस, हम है इंडिविजुअल। तो अब आपकी मर्जी है सर। अगेन आई यूज बॉर्डर पिक्चर ओवर हेयर, बॉर्डर मूवी। या आपकी मर्जी है, एक बार ही डिसाइड कर लो। ये पैसे वाली गेम नहीं है, मेहनत वाली गेम है। एक बार ही डिसाइड कर लो, आना है इन द लीग कि नहीं आना। अगर बाहर रहना है तो बाहर रहो, बट अगर आप अंदर आ गए तो फिर देयर इज नो कमिंग गोइंग बैक। भाई अगेन आई से, अगर आप पीछे हटे तो मैं गोली मार दूंगा, अगर मैं पीछे हटा तो आप मार देना। एज सिंपल एज दैट। So please be very cautious while enrolling with us as well. That's how big a warning I can give you कि इतनी ज़्यादा मेहनत होने वाली है। और यूपीएससी के लिए, इस कोर्स के लिए, क्रैश कोर्स के लिए खासकर, क्लास स्टार्ट होने का टाइम है, एंड होने का टाइम नहीं है सर। एंड होने का कोर्स है या वो कंपोनेंट है जो हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से चलेगा। नोबडी कैन कंप्लेन सर मैं तो सोना था, मैंने तो डिनर करना था। भैया खाना है सिर्फ पढ़ाई में, करना है सिर्फ पढ़ाई में, जीना है सिर्फ पढ़ाई में। यूपीएससी तभी निकलेगा। नहीं तो अरमान छोड़ दो, कोई कोचिंग वोचिंग लगाओ, अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां देखो, घूमो फिरो, मौज करो, वो अच्छी बात है। पास नहीं होने लगे 6,000 में से एक भी बच्चे पास नहीं होते प्रीलिम के रिजल्ट टाइम, सारे टॉप रैंकर आ जाते हैं, एज क्लियर एज दैट। सो what is the path ahead? If you want to work hard, let's work together. If you don't want to work hard, enjoy somewhere else. Don't spoil our results. That's a clear cut decision and warning. Thank you so much. I'll be coming to you now. कोई questions issues हो तो मेरे को बता